ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਥ ਮੈਜਿਕ ਪੰਜਾਬ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ 21 ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮ ਹੁੰਦੇ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਡਾਊਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 36। Rohit can complete a work in 10 days and Vikram can complete the same work in 18 days. If Rohit and Vikram begin the work together and Rohit left the work after 6 days, then in how many days can Vikram alone complete the remaining work? ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਇੱਕ ਕੰਮ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਉਹੀ ਕੰਮ 18 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਇਕੱਲਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਕਲਾਸ ਰੋਕ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਰੋਹਿਤ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਕਰਦਾ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਿਤ ਕਰਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਕਰਮ ਕਰਦਾ 18 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ 10 ਤੇ 18 ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 90 10 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 9 ਤੇ 18 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 5 ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਲਸੀਐਮ ਕੱਢ ਲਓ 10 ਦਾ ਤੇ 18 ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ 2 ਤੇ 2 5 का 10 2 9 का 18। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 5 2 का 10 ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਲਓ ਨਾ 2 × 5 × 9 ਹੀ ਬਚਿਆ ਨਾ 5 2 का 10 10 9 का 90 ਆ ਗਿਆ ਨਾ 90 ਐਲਸੀਐਮ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 90 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ 90 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ 9 ਆਏਗਾ। ਫਿਰ 90 ਨੂੰ 18 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਕੀ ਆਏਗਾ 5 ਆਏਗਾ। 18 5 का 90 ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਈ 9 ਵਿਕਰਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 5 ਆਈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੇਕਰ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਤ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 9 ਰੋਹਿਤ ਦੀ 5 ਦੀ 14 ਹੋ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ 14 ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 6 ਦਿਨ ਕੀਤਾ। 14 6 का 84 मतलब ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਸੀ 90 ਚੋਂ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ 84 ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਰੋਹਿਤ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 90 ਸੀਗਾ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ 84। ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 6 ਕੰਮ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ 6 ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਿਕਰਮ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 5 ਕੀ ਕਰੇਗਾ 6/5 ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ 6/5 ਦਿਨ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਏਗਾ 1 ਹੋਲ 1.5 ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਈ ਦੇਣਾ 5 1 का 5 + 1 6.5 ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ 5 ਥੱਲੇ ਟਰਮ ਬਾਹਰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕੀ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 5 1 का 5 1 ਬਚਿਆ ਥੱਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬਚਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਰਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 37। The population of a village was 2,40,000. It increased by 10% in the first year and increased by 20% in the second year.
ਇਟਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰ 2 ਈਅਰ ਇਜ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2,40,000 ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 10% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 20% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ, ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਿਵ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਮ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਆਬਾਦੀ 2,40,000, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ 10% ਵਧੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 10% ਵਧੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 110%। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ 20% ਵਧੀ। ਜੇ 20% ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 120%। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। देखो 0 ना 0, ठीक है, अब 0 ना 0, अब 2 0 आ गई। हूँ देखो पिछे की बच्चे तेरे को 2 0 आनी चाहिए गलियाँ है ना। उस तो बाद देखो 2 1 का 2 नू कराया 1, 2 1 का 2, फिर 2 आ गया, फिर 2 4 का 8, मतलब लास्ट से की डिजिट बननी चाहिए 8 बननी चाहिए। सो लास्ट तेरे 3 डिजिट की होनी चाहिए 0 0 8, मतलब कि 800 होना चाहिए लास्ट से। ये देख लो कि स्टेटमेंट च लास्ट वाली च एच नहीं है, लास्ट एच 800 नहीं है, एच भी नहीं है। सो साडा आंसर की होएगा, पहला ही होएगा। तुसीं इहदा अपना टाइम बचा सकते हो, नहीं तुसीं मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। इहदा मैं मल्टीप्लाई करके भी तुहानूं दिखा देना। देखो पहला की है, मैं 12 नूं कराना, पहला 240 ना, यही बनया ना साडा 240 × 11 × 12। पहला मैं 12 नूं कराण लगा 240 ना, 0 का 0, 12 4 का 48, 4 आंसर, 12 2 का 24, 24 ते 4 28। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਓ 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ 11 ਦਾ ਰੂਲ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰੋ। 0 ਚ 8 ਪਲੱਸ ਕਿਤੇ 8 ਦਾ 8, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੋ, 8 ਤੇ 8 ਕਿੰਨਾ ਆ 16, 6 ਇੱਕ ਹਾਸਲ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ 8 ਤੇ 2 10, ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਹਾਸਲ 10 ਤੇ 1 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 11, ਇੱਕ ਹਾਸਲ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ 2 ਦਾ 2, 2 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਾਸਲ ਬਚੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3, 3 1 6 8 0, ठीक है। तो एक पहला 2 0 हो गई सी, हो गई सी है ना। सो एक बन गया 3 1 6 8 0 0, आ गया ना आंसर। ये जेडे मैं तुहानूं इत्थे शॉर्टकट ट्रिक करा रहा, कुछ बच्चे कह रहे हैं ना कि नहीं पता लगता, तुसीं बहुत जल्दी करा दिंदे। जे नहीं पता लगता ना, तुसीं सिंपलीफिकेशन की क्लास देखो। पहला मैं सिंपलीफिकेशन की क्लास च एक तो लैके कम से कम तो 2 250 तक तुहानूं दस्सिया है कि स्केयर दे ट्रिक किद्दां करने हैं, ठीक है। और तुसीं क्लास एक बार जरूर कवर कर लो, फिर तुहानूं पता लग पेगा कि मैं 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ 5 ਵਾਲੇ ਸਕੁਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ 100 ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਤੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 38, the original price of a music set is 8400, the price is discounted by 10% and then raised by 10%, what is its new price in rupee। ਹੁਣ ਆਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਸੈੱਟ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 8400 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 10% ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 10% ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਸਮ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਮ 'ਚ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਬੇਸਿਕ ਵੀ ਤੇ ਸਕਸੈਸਿਵ ਵੀ। बेसिक तो जिद्दां आपां पिछे कीता सीगा उद्दां ही करना। देखो पहला ओरिजिनल कीमत कितनी 8400, फिर डिस्काउंट दिता 10% का। जे तुहानूं कोई 10% का डिस्काउंट देगा तो किन्ने पैसे दे के आओगे, 90% पैसे दे के आओगे। इहदा की हो गया 90%। उस तो बाद उन्हें 10% पैसे वधाते, जे 10% पैसे वधाते मतलब 100 तो उत्ते 10 किन्ने होएगा 110%। ये बहुत सिंपल कंसैप्ट है। जे घटाते तो 100 चों घटा के बन जाना, जो वधाते 100 चों वधा देने, ठीक है। उन्होंने सोल्व कर लो, 2 0 ना 0 0 ना 0, ये भी 0, ठीक है, ये भी 0। हूँ देख लो, पर एच तो सारा च मल्टीप्लाई कराना ही पेगा क्योंकि लास्ट सब च की 6 6 6, ठीक है। 9 4 का कितना है 36, 3 है,
9 8 का 72 72 ਤੇ 3 75 ਬਣ ਗਿਆ 576 ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ 11 ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਦਾ 6 ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੋ 6 ਤੇ 5 11 ਇੱਕ ਬਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ 7 ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਹਾਸਲ ਬਚੀ 8 ਇੱਕ 8 ਹੋ ਗਿਆ 8 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 13 ਇੱਕ ਬਚ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ 7 ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 8 ਹੋ ਗਿਆ 8316 ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗਾੜ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਪਾਂ ਕਿਦਾਂ 11 ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ 9 ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹਨਾ ਇਹ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਪਿਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਰ ਆਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਘਟੀ ਆ ਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ -10 ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ x + y + xy / 100 ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਟਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵਧਦੀ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟੀ 10% ਫਿਰ ਵਧੀ 10% ਵਧੀ ਤੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 10 ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ -10 × 10 ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ / 100 देखो 0 ਨਾਲ 0 की 0 ਨਾਲ 0 0 0 गया 10 ਤੇ 10 की बनया 0 बन गया नहीं हाँ जी 0 बन गया है ना फिर अगे 1 1 करा किया -1 आया मतलब 1% की होगा घटेगी माइनस साइन दसदा कि घटेगी ठीक है है कि नहीं साड़ी 84 100 1% घटेगी तो कितना हो जाएगा 99% हो जाएगी 99 की वैल्यू काट लो मल्टीप्लाई करा के देख लो ठीक है वैसे भी जो तुम 99 नहीं मल्टीप्लाई कराना तब तो एक चीज़ अंदाजा होना चाहिए अपने आप कोई भी टर्म 100% होंगी है मतलब 8400 तो 99% मतलब थोड़ी जी घट 8300 एक ही ऑप्शन है 8300 वाली नहीं तो इन्हें मल्टीप्लाई करा के भी देख सकते हो देखो 9 4 का 36 9 8 का 72 72 ते 3 75 फिर दोबारा सेम बनेगा 7 5 ते 6 इन्हें जमा कर लो हम 6 ਦਾ 6 6 ਤੇ 5 11 7 1 8 5 13 7 1 8 देखो बन गया ना 8316 चाहे सक्सेसिव ना कर लो तो चाहे बेसिक ना करो आंसर सेम बनना है जिदा तुम टीचर को तुम समझाया उदा कर लो ठीक है हूँ क्वेश्चन नंबर 39 फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन रुपी ऑन रुपी 2000 एट a 6% per annum rate of interest for the period from 12 फरवरी 2023 to 26 अप्रैल 2023 ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 12 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਤੇ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲੱਭੋ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2023 एक ही एक नॉर्मल साल है सो कोई तुहानू स्पैशल नहीं करना पेगा पिछे आप जिन्हें भी शिफ्टा देखिया की करता है लीप ईयर दिंदा है ठीक है हूँ की कहता 12 फरवरी तो जे अगर नॉर्मल साल है तो नॉर्मल साल किन्ने दिन होंगे फरवरी 28 दिन किन्ने तो शुरू करता पे 22 तो 12 तो सॉरी बाकी किन्ने दिन बचे 12 च 2 8 2 गए 6 2 च गया 16 मतलब फरवरी के किन्ने दिन हो गए 16 फिर मार्च महीना आया होगा मार्च महीने किन्ने दिन होते 31 फिर अप्रैल कितनी तरीक तक क्या 26 तक सो इतने 26 प्लस कर देंगे किन्ने बनया 6 6 12 1 13 3 ते 2 5 1 6 ते 1 7 73 दिन बन गए ठीक है हूँ आप करते हैं इंटरस्ट सिंपल फॉर्मूला P × R × T थले की होंगे 100 होंगे पहला प्रिंसिपल कितना 2000 रेट कितना 6% टाइम कितना लेता पा 73 ऊपर की गई 73 दिन है थले भी पा किन्ना डिवाइड करावांगे दिनां नाल आप पिछे जिन्ने भी सारे सम किते उन्हां च लीप ईयर इस करके आप किन्ना करांदे सीगे 366 ना पर एक ही गा कि नॉर्मल साल है इस करके आप किन्ना करावांगे 365 नाल ही करावांगे इत्थे की आएगा × 100 हुण देखो किदां करिए सोल्व देखो 73 टेबल तो किन्ने जाएगा 3 5 का 15 ते 7 5 का 35 35 36 किन्ने ते गया 5 ते गया हूँ 0 0 0 0 5 4 का 20
कि बचा 4 तो 6 बचा, 4 6 का 24। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3 24 आंसर। इधर के सवाल ध्यान दे के करना को नॉर्मल साल दिता है कि लीप ईयर दिता है। जे लीप ईयर दिता है तो दिन कितने होंगे फरवरी 29 होंगे, तो थल्ले भी क्या आएगा 366 दिन आएंगे। हुण चलते अपने अगले सवाल ते। क्वेश्चन नंबर 40 ये मैं तुहानू शॉर्ट ट्रिक ना दसूंगा, ठीक है। तो बेसिक ना भी बहुत ईजी, बेसिक ना थोड़ा लंबा ही ना, पर शॉर्ट ट्रिक ना बहुत ईजी है, जो तुहानू मैं पिछले क्लासा च दसदा आ रहा। जे किसी को शॉर्ट ट्रिक नहीं समझ लगेगी वो कमेंट कर देना, मैं जी पिछले क्लास च इस शॉर्ट का बेसिक कराया है ना, वो तो तुहानू लिंक शेयर कर दांगा, तुहानू क्लीयर हो जाएगा किद्दां करदे आपां। क्वेश्चन नंबर 40 द एवरेज वेट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ अ स्टूडेंट इन अ ग्रुप is 68. If 18 students having an average weight of 72 kg leaves the group and 3 students having an average weight of 77 kg join the group, the average weight of the students in the group decreases by 1.8 kg. The number of students initially in the group was। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਚ एक समूह ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ औसत ਭਾਰ 68 किलोग्राम है। जेकर 72 किलोग्राम ਦੇ औसत ਭਾਰ ਵਾਲਾ 18 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 77 किलोग्राम ਦੇ औसत ਭਾਰ ਵਾਲੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ औसत ਭਾਰ 1.8 किलोग्राम ਘਟ ਜਾਂਦਾ है। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਡੈਸ਼ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਵਰੇਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਟਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਏ ਤੇ ਕਈਆਂ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਆਏ, ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਉਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ 60% ਐਵਰੇਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, अगर वो 60 तो ज़्यादा नंबर है तो एवरेज की होंदा वध जाती है, जे 60 तो घट नंबर है तो एवरेज की होंदा घट जाती है। बस असी यही बेसिक कंसैप्ट का इत्थे यूज़ करांगे। सेम देखो कहंदा हुण पहला की क्या विद्यार्थी का औसत भार कितना 68 68 है। हुण तुहानूं इन्ना क्लीयर हो गया जे बेसिक इहदा औसत भार 68 है, जे 68 तो ज़्यादा भार वाले बच्चे आउणगे तो एवरेज ਵਧੇਗੀ, जे घट वाले आएंगे तो एवरेज घटेगी। सेम जे 68 तो ज़्यादा भार वाले बच्चे ग्रुप छड़ के जाते हैं तो एवरेज की होएगा घट जाएगी, तो जे घट वाले छड़ के जाते हैं तो एवरेज की होएगा वध जाएगी। ये बेसिक कंसैप्ट है, ठीक है। हुण देखो कहता जेकर 72 किलोग्राम के औसत भार वाले 18 विद्यार्थी समूह छड़ देंगे हैं, किन्नियां ने छड़ के गए 72 किलो भार वाले, मतलब ज़्यादा भार बाहर लै गए है ना। एवरेज कितनी 66 ही, 4 ज़्यादा लैके गए भार, ठीक है। जाना की कर रहा 4 भार ज़्यादा लैके गया तो टोटल बच्चे कितने ही गए 18 गए, 18 चुके 72, मतलब 72 भार की होया ये ज़्यादा लै गए है। 72 एवरेज की घट जाएगी ना है ना। एवरेज 68 सी, जे 68 दे जाते तो फिर तो कोई फर्क नहीं पैना हैगा, भारे बच्चे बाहर चले गए हैं तो 68 तो ज़्यादा वाले तो एवरेज घटेगी ना। सो कितनी घटी 4 घटेगी तो टोटल एक बच्चे की, तो टोटल बच्चे कितने 18, मतलब 72 एवरेज घट गई। हुण उस तो बाद कहता समूह छड्ड दिंदे हन अते 77 किलोग्राम की औसत भार वाले 3 विद्यार्थी समूह में शामिल होंदे हन। हुण की कहता 3 विद्यार्थी शामिल होए ने 77 किलोग्राम वाले, एवरेज साडी कितनी 68, मतलब 77 वाले आ रहे ना कितना ज़्यादा लैके आ रहे 11 ज़्यादा लैके आ रहे हैं, 11 9 सॉरी गलती नहीं लिया, कितना ज़्यादा लैके आ रहे 9 ज़्यादा लैके आ रहा। एक जना कितना लैके आ रहा 9 ज़्यादा लैके आ रहा, तो बच्चे कितने ही 3 जाए ही, मतलब 3 9 का 27, 27 की है एक्स्ट्रा लैके आ गए है ना भार। हुण आपां देखना इन्हां दोवां दे इन्हां दे जाण नाल ते इन्हां दे आण नाल कितना फर्क पिया। 72 चों 27 गए, 3 ते 2 5 आ कितना बन गया 6, 6 चों 2 गया कितना बनया 4, मतलब वड्डी रकम किहड़ी है माइनस दी, इत्थे की माइनस, मतलब माइनस 45 भार घटेगा, ठीक है। हुण देखो माइनस 45 हुण कहंदा अगे की आने
ਤਾਂ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਔਸਤ ਕਿੰਨੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ 1.8 मतलब ਜਿਹੜਾ 45 ਭਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ 1.8 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੇਖੋ 45 ਬਟਾ 1.8 ਕਰ ਦੋ ਡਿਵਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਣਗੇ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲ ਆਣਗੇ देखो पॉइंट हटावांगा उत्ते क्या जाएगा 10 9 5 का 45 9 2 का 18 2 5 का 10 किन्ने बने 5 5 का 25 मतलब हुण तुहाडे को किन्ने बच्चे 25 बच्चे है ठीक है कदों 25 बच्चे है जो 18 चल गए तो 3 आ गए है उन्होंने लास्ट तक पूछा शुरू विच समूह विच विद्यार्थियों की गिनती डैश सी कहंदे शुरू च गिनती कितनी रहेगी हुण देखो इस टाइम ते 25 है पहला कि 18 चल गए थे आप 18 जोड़ देने फिर क्या 3 नवे आ गए थे आप 3 ऐड करते हैं आप 3 घटा देने इन्हों जोड़ लो देखो पहले दोवां जोड़ ला कितना बने 8 5 13 2 तिक 3 तिक 4 कितना बन गया 43 बन गया थले लिखदा थोड़ा थले करके कितना बना 43 तो माइनस की कर देंगे पर 3 3 आए भी सी ना नवे पैड किए कितना बनाया 40 ये साਡਾ आंसर तुम जिन्हें कंसैप्ट बार बार करी जाओगे ਤੁਹਾਨੂੰ उन्ना ही टाइम घट लगना शुरू होएगा नहीं तुम बेसिक ना करते तो बहुत लंबा जाता क्वेश्चन नंबर 41 देखो किदा सिंपलीफिकेशन का ਤੁਹਾਨੂੰ ना सिंपलीफिकेशन च ना कुछ बेसिक चीज़ें दिखनी चाहिए देखो जिदा कि इतने मैं दिख रहा ऊपर कितना 216 इतने का 2.3 मतलब 3 पहला कटिया जाना चाहिए ताही तो स्केयर होएगा किसी चीज़ का सो किसी चीज़ का 216 क्यूब होगा किदा का क्यूब 6 × 6 × 6 6 6 का 36 36 6 का 216 होंगे थले देखो थले की 27 27 कितना होंगे 3 3 का 9 3 का 27 जितना ना पता लगे फिर तुम प्रोसैस तो लंबा पर बट फिर और कोई चारा भी नहीं फिर इदा करो फैक्टर करने शुरू कर दो फिर 3 3 दे पेयर बनाओ पहला करोगे 2 थे 2 1 का 2 0 2 8 का 16 फिर 2 5 का 10 2 4 का 8 2 2 का 4 2 7 का 14 3 7 का 3 9 का 27 3 3 का 9 3 1 का 3 देखो क्यूब करना ना थले बार 3 ना कटे जाने चाहिए सो 3 3 दे पेयर बनाओ 3 का 1 जोड़ा बन गया 3 का 1 का बन गया एक है तो 2 थलो क्या 3 2 3 का 6 आ गया ना 6 का क्यूब होंगे सेम ही तुम 27 का बनाओगे देखो इतने 27 ही 27 का किदा आया 3 का क्यूब आया हुण अगे देखो जे अगे भी मैं बाहर कटना गा किदा कटांगा ये 8 8 किदा क्यूब होंगे 2 का 2 2 का 4 2 का 8 थले की 125 125 किदा होंगे 5 का 5 5 का 25 5 का 125 होंगे ठीक है इतने की कहेगा इतने कटिया नहीं जाना कोई का भी क्योंकि यह प्रॉपर है ही नहीं फ्रैक्शन थले भी नहीं हुण आप सोल्व करते हैं 216 किदा क्यूब होंगे मैं तुहानूं दस्सिया 6 का उपर की आ जाएगा 6 थले की 27 27 किदा क्यूब होंगे 3 का दोवां का की बन गया क्यूब बाहर की कहेगा पावर 2/3 सी देखो 3 जो 2/3 ना करोगे 3 3 कटा जाएगा कि बच्चे 2 ही पावर बची इंटू 8 किदा होंगे 2 का तुहानूं दस्सिया ना 2 2 का 4 2 का 8 थले 125 किदा होंगे 5 का नहीं तो कट के देख लो 125 का भी 5 2 का 10 5 5 का 25 5 5 का 25 5 1 का 5 मैं क्या जो क्यूब बनाना थले तो करना 3 का जोड़ 3 का पेयर बनाना बन गया ना एक ही पेयर बनया 5 है ना इस करके 125 किदा होंगे 5 का होंगे एक ही बन गया था क्यूब बाहर पहले की कहेगा -2.3 सीगा फिर देखो डिवाइड द डिवाइड 7/4 देखो इतने ना 2 बारी रिपीट होना चाहिए उल्टे होना चाहिए 2 बारी जो कोई चीज़ 2 बार उल्टे हो तो सीधी हो जाती है ना देखो किदा मैं दस कह रहा कि जो पावर की गई माइनस चाहिए जो पावर माइनस च इन पॉजिटिव च करना तो करी दा की टर्म उल्टा कर दीदा ऊपर क्या आ जाएगा 4 थले की जगह 7 एक ही बन जाएगा था स्केयर बन जाएगा ठीक है हूँ देखो आगे बनाए 6/3 ਇਹਦਾ ਕੀ ਗਾਇਸ ਸਕੁਅਰ दो बार मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई की हले भी कटा जाएगा देखो उत्ते की गई 6 3 2 का 6 बन गया ना
मतलब उत्ते की बचा 2, 2 का क्या है स्केयर, 2 का स्केयर कितना 2 का 4 आ गया इनटू आ 3 ने 3 कटा गया, आगे बचा 2/5 का पावर -2 इतने की डिवाइड 4/7 का की आ गया स्केयर। हूँ देखो 4 का 4 ये भी पावर माइनस च मैं जो प्लस च बनावगा की होगा उल्टा आ जाएगा, उत्ते की आ जाएगा 5, उत्ते की आ जाएगा 5, थले की आ जाएगा 2, एक ही बन जाएगा स्केयर बन जाएगा। इतने की डिवाइड जो आप डिवाइड में भी मल्टीप्लाई चेंज करते हैं और करते हैं उल्टा कर दें की बन जाएगा 7/4 का स्केयर। मैं तुम्हें क्या ही ना कोई चीज़ 2 बार उल्टी होती सीधी हुई, देखो स्टार्टिंग भी की गई 7/4 इतने भी बन गया 7/4, एक बार पहला माइनस न आप पावर चेंज करने वास्ते किया उल्टा, फिर पर डिवाइड का करने वास्ते किया उल्टा। उन्होंने सोल्व कर लो, देखो आ की गई 4 का 4, 5/2 का की गा स्केयर, 5 का स्केयर कितना 25, 2 का स्केयर 4 इंटू एक ही गई 7/4 का स्केयर है ना, 7/4 का की स्केयर, उत्ते की आ जाएगा 7, 7 का 49, थले की आ जाएगा 4 4 का 16, इन सोल्व कर लो, 4 नाल 4 गया थले, देखो सीधी गल है ऊपर सारी ओड टर्म है ना, थले ईवन टर्म है, ओड ईवन टर्म हमेशा ईवन वाले ने कट्टी जाती है, थले मतलब 16 बचेगा डिनोमीनेटर च, 16 वाला ऑप्शन इको है, ऑप्शन नंबर 4। सो आही तेरा आंसर होएगा, जे नहीं फिर करके देख लो, थले की आएगा 16, 25 का टेबल पढ़ो, 25 8 तो 225 ने आया 225 होंगे, पिछे की आ जाएगा 5, उत्ते की बचा 22 बच गया, 25 4 तो कितना था 100, 100 तो 22 कितना बन गया 122 बन गया, आ गया ना 1225/16। जे सम च स्पीड बढ़ानी अपने टेबल चंगी तरह याद रखो। हुण चलते अपने अगले सवाल ते, क्वेश्चन नंबर 42, सिंपलीफाई द गिवन एक्सप्रैशन, यह भी सेम है, देखो इत्थे की 8/125, 8 किहदा क्यूब हुंदा 2 का, 125 किहदा क्यूब हुंदा 5 का, यह बन गया क्यूब इंटू 2/3, फिर मल्टीप्लाई एक ही का 2 यह भी किहदा बन गया, देखो ये दूजे तरीके भी कर सकते, ये बेस सेम है ना दोवां का, यह भी 5/2 का, आप बेस सेम ऐड ही कर लेने हैं, देखो चाहे बेस सेम करके करो चाहे जिदा मर्जी कर लो, आंसर हमेशा सेम आना है। जो पिछला पर सम किया ना देखो वो जो सारे के अलग अलग सीगा, यह बनता भाई 5/2, आ बनता भाई 6/3, आ बनता भाई 7/4, और इस सम च देखो ये भी 8/125 मतलब 2/5 बन जाएगा, ये भी 2/5 बन जाएगा, ठीक है ये भी 2/5 बन जाएगा, ये भी 2/5 ही है, इन उल्टा कर देंगे तो सो की प्रॉपर्टी की है ए रेस टू पावर एम इंटू ए रेस टू पावर एन की होंगे ए रेस टू पावर एम एम प्लस एन होंगे, जे हो ए रेस टू पावर एम डिवाइडेड बाय ए रेस टू पावर एन, फिर की होता ए रेस टू पावर एम माइनस एन, जो मल्टीप्लाई हो तो पावर की होंगी प्लस, थले बेस सेम होना चाहिए जिदा इतने सेम है 8/125, 8/125 या 5 बना लागे है ना, तो जो डिवाइड च हो तो की होंगे पावर माइनस हो जाती है। हूँ देखो इनू मैं लिख सकता 2/5 के क्यूब इंटू 2/3, फिर इंटू 2/5 का क्यूब इंटू -2/3, आ 3 3 कटे गए, फिर डिवाइड 5/2, इतने की पिछे 2/5 है, इनू भी आप 2/5 बना लें, ठीक है ताकि आंसर साढ़ा आसानी ना जल्दी निकल आए। जो बाद 5/2 की बनावे 2/5, पावर की थी माइनस कि बन जाएगी प्लस च, जो प्लस च हो माइनस च हो माइनस च हो प्लस च हो, हूँ देखो अब 3 3 कटा गया, आके बनया 2/5 की पावर 2, आगे क्या मल्टीप्लाई मैं तुम दसिया जो मल्टीप्लाई हो पावर की ऐड हो प्लस, आ गई इतने -2, माइनस का 2 प्लस करता इच, अगे की डिवाइड डिवाइड हो तो पावर की -2, इन सोल्व कर लेने पा, देखो 2/5 की पावर 2, आ भी -2 -2,
2 ਤੇ 2 4, 4 ਚੋਂ 2 ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 2, ਕੀ ਬਣਿਆ 2/5 ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮਾਈਨਸ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਵਰ ਉਲਟਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 5/2 ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ 5 5 का 25, थले 2 2 का 4 की बन गया 25/4। ऑप्शन नंबर आड़ी 3। ये प्रैक्टिस जरूर करो एक्सपोनेंशियल वाले सम, बार बार ही उल्टे सीधे करना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बस इन्ना देख लो जो मल्टीप्लाई तो पावर ऐड होणगियां, जो डिवाइड तो पावर माइनस होणगियां। हुण चलते अपने अगले सवाल ते। क्वेश्चन नंबर 43। इन अ स्टोर द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन अ हैंडबैग आर 15% and 10%. If the store price of the handbag is rupees 2700, then calculate the selling price of the handbag। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਂਡਬੈਗ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟ 15% ਹੈ ਅਤੇ 10% ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੈਂਡਬੈਗ ਦੀ ਸਟੋਰ ਕੀਮਤ 2700 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਂਡਬੈਗ ਦੀ ਵਿਕਤੀ कीमत ਦੀ गणना करो। देखो सब तो पहला स्टोर कीमत कितनी है, स्टोर च 2700 रुपया। ਹੁਣ ਕਿ ਦੋ ਛੂਟਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ 15% ਤੇ 10% ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਸਿਕ ਨਾਲ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 15 ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਗਾ ਤੇ ਵੇਚੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇ 85% ਤੇ, 10% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਗਾ ਤੇ ਵੇਚੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇ 90% ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। 0 0 0 0 ਇੱਥੇ 1 0 ਗਈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਦੀ ਦਵੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ, क्योंकि पिछे बच गया। एंड मल्टीप्लाई करा के भी देख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट भी दो च 0.5 सो मल्टीप्लाई कराना ही पेगा। देखो तुम टेबल जो याद हो तो कितना आसानी ना करा सकते हो। मैं 27 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ कराना, मैनू पता है 9 कितना 3 × 3 27 3 का 81 81 3 का 243 243। नहीं तो तुम मल्टीप्लाई करा के देख लो कि 243 कितना है। 9 ਨੂੰ कराने लगा 27 ना, 9 3 का 9 7 का 63 6 हासिल, 9 2 का 18 18 ਤੇ 6 24 बन गया ना 243 इंटू 85। हम 85 ना मल्टीप्लाई कर लो, दो थले लिख के मल्टीप्लाई करावा। 3 5 का 15 5 4 का 20 20 ਤੇ 21 2 हासिल, 5 2 का 10 10 ਤੇ 2 12 8 3 का 24 2 हासिल, 8 4 का 32 32 2 34 8 2 का 16 16 ਤੇ 3 19 5 4 ਤੇ 5 4 5 6 9 ਤੇ 10 1 ਤੇ 2 20655। ਥੱਲੇ ਕੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋ 10 ਵੀ ਗਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟ 2065.5। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ 3। ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ डिस्काउंट, मतलब पैसे की होंगे घटे गए तो इतने की है -15, फिर दोबारा डिस्काउंट था -10। हूँ दोनों मल्टीप्लाई कराना, माइनस माइनस की होता प्लस 15 × 10/100। इनू सोल्व कर लो, 0 ना 0 गया, इतने की बच गया 10 बच गया। 15 तो 10 कितना बन गया 25 प्लस इतने पॉइंट की आ जाएगा 1.5 बन गया, मतलब 25 चो 1.5 गया कितना बन जाएगा 23.5 माइनस तक डिस्काउंट मिलेगा 23.5 का। जे किसी चीज़ तुम 23.5 का डिस्काउंट लाओगे तो बेचोगे किन्ने ते, जे तुम नहीं पता लगे सोचो कर लो माइनस 23.5 0.5 का 0.5 आ की बन गया 9 9 चो 3 गए 6 आ बन गया 9 9 चो 3 2 गए 7 76.5%। सो जी तुम वैल्यू थी वह 76.5% कर लो। इतने मैं हूँ कड्डांगा नहीं क्योंकि सेम ही आना। देखो थले 10 बजना 765 × 27 बन जाना, आंसर क्या आएगा था वही 2065.50। ठीक है, तुम अपने आप करके देख लेना, जो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। हूँ चलते अपने अगले सवाल ते। तुम कमेंट करो स्टेटमेंट रीड, मैं पानी पी लवा है ना। क्वेश्चन नंबर 44।
A and B complete a work in 14 days. If A alone can do it in 21 days, then B alone can do it in dash days. ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ A ਅਤੇ B ਇੱਕ ਕੰਮ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ A ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ B ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੌਣ A ਇੱਕ ਕੀ B, A ਤੇ B ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 14 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ A ਇਕੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 21 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਰਮ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ। 14 ਤਰੀਕਾ 42 ਤੇ 21 2 ਤੇ 42 ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਮਲਟੀਪलाई ਉਹੀ ਐਲਸੀਐਮ 7 2 का 14 7 3 का 21। देखो 7 × 2 × 3 7 2 का 14 14 3 का 42 आ गया ना 42 एलसीएम। 42 ਨੂੰ 14 डिवाइड करोगे 14 3 का 42 21 ਨੂੰ 42 ਨੂੰ कितना 21 ने डिवाइड कितना आएगा 2 आएगा। ਹੁਣ देख लो A ਤੇ B ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ 3 ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ। A ਦੀ ਕਿੰਨੀ 2, ਜੇ A ਦੀ 2 ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ 3 ਹੈ मतलब B ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 1 ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ B ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 42, B ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 1, 42 ਬਟਾ 1 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 42 ਆंसर। ऑप्शन नंबर साडा 2। ਹੁਣ चलते अपने अगले सवाल ते। क्वेश्चन नंबर 45 इन द मार्केट सिक्का इलेक्ट्रॉनिक्स is offering two successive discount of 12.5% and 12.5% on fridge with the market price of rupees 50,000 and Sachin and Coke is giving successive discount of 20% and 5% respectively on the same item. Which of the two dealers is giving the fridge at a lower price and at what price? ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰਿਜ ਤੇ 12.5% ਅਤੇ 12.5% ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਛੂਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20% ਅਤੇ 5% ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫ੍ਰਿਜ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਿੱਧਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਕਾ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਕਾ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਸਚਿਨ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਸਚਿਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਗਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਵਾਲਾ लगाने हैं। देखो ਇਹ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ डिस्काउंट दे रहा है। पहला की -12.5, फिर -12.5, फिर माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस इंटू 12.5 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय 100। 12.5 तो 12.5 कितना होता 25 माइनस का 25 आ गया प्लस। हूँ देखो इतने तुहानू हूँ कुछ बच्चों को समझ नहीं लगनी। 12.5 मल्टीप्लाई करा के की आएगा। तुहानू मैं तो पहला दसिया है सिंपलीफिकेशन की क्लास च ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਾ 5 ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 25 ਆਂਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ 12 ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੀ ਆਂਦਾ 13। 12 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ 13 ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏਗਾ। देखो 12 3 का 36, 6 आया 3 आंसर, 12 1 का 12, 12 3 15। ਇੱਥੇ देखो ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿੰਨਾ 2 ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੁਆਇੰਟ थले की आएगा फिर 100 आएगा। 100 का आप पॉइंट ला देने इतने की आ जाएगा इतने पॉइंट आ जाएगा है ना 2 और डिजिट बाद मतलब की बनेगा -25 प्लस 1.56 समथिंग बन जाएगा, ठीक है। तो 24 एक ही बन जाएगा 25 जो एक गया 24 इतने माइनस कर लेने 25
25.00 माइनस 1.56, 10 चो 6 गए 4, 9 चो 5 गए 4, 4 चो गया 3, 23.44 डिस्काउंट मिलेगा। ये तो ही पहले केस च। केस हुण दूजा देखो की कहता पे, इतना एक 20% का डिस्काउंट, एक इतना 5% का, मतलब -20 -5 माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस 20 × 5/100, 5 के टेबल से गया 20 तो 100, 20 ना 20 कटिया गया, एक ही बन गया 1, -20 तो -5 कितना बनया -25, इतने की प्लस का 1, 25 चो गया कितना बनया -24। देखो तुहानू इत्थों एक गल क्लीयर होगी, उन्हें पूछा कि किहड़ा तुहानू ज़्यादा डिस्काउंट देगा। देखो इन्ना तो पता लग गया सानू कि केस दूजे वाले ज़्यादा डिस्काउंट मिलता पाया, मतलब जी दूजी कंपनी किहड़ी सचिन दी कंपनी की करती पई है डिस्काउंट ज़्यादा दिंदी पई है। सो इस तो जो ऑप्शन एलिमिनेट करने हुण, पहला ऑप्शन भी गया सिक्का वाला तो आ भी गया, ठीक है। हुण देखो कि बचा 24%, जो 24% डिस्काउंट देगी तो बेचेगा किन्ने ते, MRP कितना है 50,000, 24% का डिस्काउंट देगी बेचे किन्ने थे 76% दे, इंटू 100, 0 ना 0 0 ना 0, पीछे क्या गया 0 0, आगे देखो 5 6 का 30, 0 3 आंसर, 5 7 का 35, 35 3 38, आ गया 38,000 रुपया। एक आठ ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। जे तो तुम अपना इदा कर दो कि भी कढ़ के फिर दोबारा कढ़न लग पेंगे किन्ना डिस्काउंट मिलता पाया, वो फालतू का है। तो तुहानू पहला दोवां च पता लग जाना कि किहदी परसेंटेज ज़्यादा है तो किहदी घट है। ये ज़्यादा किच मिलता पाया केस दूजे च। सो हम पहला तो सोल्व करने की ज़्यादा लोड़ ही नहीं पई, फिर पर दूजे तो किया सीधा सोल्व कर लिया, वो साडा निकलिया ऑप्शन नंबर 3 सॉरी 4। हुण चलते अपने अगले सवाल ते। क्वेश्चन नंबर 46, द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीज्ड बाय 30%, 40% and 50% in 3 successive months, but increased by 40% in the 4th month. What is the percentage increase or decrease in the price of fuel if the 4th month as fuel in the 4th month as compared to its original value, original price। ਹੁਣ ਆਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 30%, 45% ਅਤੇ 50% ਘਟਦੀ ਹੈ, पर चौथे महीने विच 40% वधाई गई है। चौथे महीने विच बालन की कीमत विच इसकी असल कीमत के मुकाबले किन्ने प्रतिशत वाधा कमी होंदी है। देखो सब तो पहला जो मैं कंपेयर करना अपने वालों, मैं वैल्यू हमेशा की लेना 100, ताकि कंपेयर करना कि हो जाए सौखा हो जाए। मैं अपने वालों MRP जिन्होंने पंकित मुल करने किन्ने ले लिया 100। हुण देखो वो कहता पहला की है प्राइस 30% घटिया, जे 30 घटिया कितना रह गया होगा 70%, उस तो बाद कितना 45%, जो 45% घट जाएगा तो कितना बचेगा 55%, उस तो बाद 50% जे घट गया तो बचेगा कितना 50%। फिर उस तो बाद की कहता हुण चौथे महीने च कीता 40% वधा दी है, जे 40% वधा दी तो कितना हो जाएगा अपने आप 140%। इन्होंने सोल्व करो, आ 0 ना 0, आ 2 0, आ 0 ना 0, फिर आ 0 ना इक्वे जानी 0, आ बचा 5 2 का 10, 2 7 का 14, ठीक है। 2 7 बचे 55 बचे तो 100 बचा, थले रहने देने, ठीक है। ये बनेगा 7 7 का 49 × 55 डिवाइडेड बाय थले कितना है 100, दोनों मल्टीप्लाई करा लो, 49 × 55, 9 5 का 45, 5 4 का 20, 20 के 4 24, सेम दोबारा बन जाना 245, 5 का 5, 5 4 9, 4 5 6, 2 का 2, 2 6 9 5, कितना बन गया 26.95 बन गया। ये क्यों है तो डिस्काउंट होया, जो 26.95% डिस्काउंट देगी तो बेचेगा किन्ने ते, मतलब कितना 26.5% हो गया है ना, मतलब कितना घट गई है। देखो 100 चो माइनस कर दो, 100 चो 26.95 गया, कितना बचा 10 चो 5 के 5, 0 5, अगे की आ गया आ बन गया 9 9 चो 6 के 3, ते आ बन गया
आ गई कहते 9 9 च दोगे 7 73.05 ਇਹ ਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝ ਡਾਊਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਵਨ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੈ, ਮੈਥਸ ਮੈਜਿਕ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਗਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 47। ਇਹ ਵੀ ਗਾ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣੀ। ਦੇਖੋ 5 5 का 25, 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, 25 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕਰਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 100। ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 30 × 100। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1/6, ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ प्लस का 7 तो माइनस का 8 की बने, माइनस का 1 आ गया इतने। हूँ इन्होंने सोल्व करो 3 2 का 6 2 आकेगा 50, 50 चो 1 गया कितना आ गया 49। एक ही है आंसर, ऑप्शन नंबर आड़ी 4। पेपर जो इदा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो। हूँ चलते अपने अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 48। ये भी सिंपलीफिकेशन का, ये भी मैं कोशिश कराँगा जल्दी जल्दी इतने सोल्व कर लिए। पहला एक ब्रैकेट सोल्व होगी, फिर डिवाइड, तो उधर ए ब्रैकेट होएगी, फिर डिवाइड, फिर प्रॉपर होएगा। ठीक है, सो करिए 46 का 46 इंटू 99 किया 11 ना करना आप डिवाइड। ये देखो इतने की गा डिवाइड, या तो मैंने पहले डिवाइड करने के बाद फिर डिवाइड करा है ना, नहीं तो मैं सीधा लिख ला डिवाइड में मल्टीप्लाई करा की बन जाएगा 1/11 बन गया। फिर माइनस का माइनस 8 का 8 इंटू 8, पहले तो मल्टीप्लाई होना, मैं इतने सीधा लिख ही लेना। 8 8 का की बन गया 64 प्लस 7 इतने माइनस का माइनस। देखो 6 च 5 के कितना बचा 1, 1 नू डिवाइड करावांगे 1 ना तो कितना आएगा 1 ही आएगा। देखो नहीं माइनस का की आएगा 1 आएगा। ठीक है, हूँ इतों के सोल्व करते हैं। 9 11 का 99, 11 11 कटा गया कितना बचा 46। हूँ अगो इधर देख लो 64 तो 7 कितना बन गया 71, 71 चो 1 गया कितना बनया 70, मतलब माइनस का 70 आ गया। 10 चो 6 गया कितना बचा 4, आ की बन गया 6, 6 चो 4 गया कितना बचा 2, कितना बन गया -24। ये हाड़ा ऑप्शन नंबर हाड़ा पहला। ठीक है, जो तुहानू कोई डाउट रहिंदा प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं तुहानू दस दूंगा। तो जेडे बच्चे नवे जुड़े ने प्लीज़ सैशन नू लाइक जरूर करो, तो चैनल नू सबसक्राइब जरूर करना। तुसीं किसी भी टैलीग्राम ग्रुप चो तो शेयर जरूर करना क्लास का लिंक। हुण चलते अपने अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 49। 6 people can complete a work in 16 days when everyone work for 5 days 5 hours every day. In how many days will the work be completed if 4 people work together for 6 hours per day? ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 6 ਲੋਕ ਇੱਕ ਕੰਮ 16 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ 4 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ 6 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। 6 people can complete a work in 16 days when everyone works for 5 hours every day. In how many days will the work be completed if 4 people work together for 6 hours per day? ਹੁਣ ਇਹੀ क्वेश्चन पंजाबी विच 6 लोग एक काम 16 दिन विच पूरा कर सकते हैं ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ 4 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ 6 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ 6 ਲੋਕ मतलब 6 मैन कितने दिन कर दिया 16 दिन, ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 5 ਘੰਟੇ × 5 कहते ਤਾਂ किन्ने दिनों काम कंप्लीट हो जाएगा जे 4 लोग 4 मैन 6 घंटे काम करते हैं तो किन्ने दिन लगणगे। सानू दिन नहीं पता, पर दिन का लिख लांगे डी लिख लांगे, बस इनू इक्वेट कर दो तो वैल्यू आ जाएगी तुहाडी।
उधर जाके करो डिवाइड कर दो 6m इंटू 16 इंटू 5 थले क्या आ जाएगा 4m इंटू 6 इक्वल टू डी। इन्हू सोल्व कर लो 4 4 का 16 m नाल m गया 6 ना 6 गया 4 5 का कितना 20 मतलब 20 दिन काम की हो जाएगा पूरा हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी सम सीगा। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇਕੁਏਟ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀਗਾ ਜੇ ਸੇਮ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਵਰਸ ਲਿਖ ਕੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 50। क्वेश्चन नंबर 50 द फोर्थ proportion of 12 24 and 45 is। देखो चौथा प्रपोर्शन की सब तो पहला 12 थले 24 इक्वल टू 45 अपॉन x ये होंगे फोर्थ प्रपोर्शन। x की वैल्यू करनी x उधर चल जाएगा ऊपर 24 तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 की नीचे आ जाएगा। इन्हें सोल्व कर लो 12 2 का 24 45 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕਰਾਓ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 45 2 का 90। ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ। ਇਹਗਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ the subdivided bar graph given below depicts highest secondary result of a school for 3 years। study the graph and answer the following question। ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਤੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਗਏ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਥੱਲੇ ਏਅਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਕਹਿੰਦਾ the percentage round of to 2 decimal places of students passed in second division in 2022। ਕਹਿੰਦਾ 2022 ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 2 ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੇਖਣੀ 2022 ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ 2022 ਸੈਕੰਡ ਚ ਪਾਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ 42 ਆਹੀ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਲੀ ਸੈਕੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ 42। फिर थले की आएगा टोटल आएगा ना 2022 जिन्ने होए होंगे। देखो सैकंड डिवीजन चो 42 फिर नीचे कितना 112 लास्ट से कितना 28 इन्होंने पा कर लेने प्लस 8 ते 4 कितना बनया 12 एक हासिल 4 ते 2 6 ते 2 8 एक दा एक टोटल कितना बनया 182। नीचे की आएगा टोटल इंटू 100 इदा कर देना परसेंटेज जिन्नी वैल्यू दी थी उन्नी ऊपर नीचे टोटल इंटू 100 इन्हू सोल्व कर लो। पहला कितने जाएगा 7 टेबल तो जा रहा है 7 6 का 42 7 2 का 14 7 6 का 42 इस तो बाद 2 3 का 6 2 1 का 2 2 3 का 6 कितना बन गया 13 बन गया। हूँ इस तो अगे देखो डिवाइड तो होना नहीं है इन बस सीधा ही कर लेने उत्ते कितना बन जाएगा 300 डिवाइड बाय 13 पहला कितने जाएगा 2 तो जाएगा 13 2 का 26 कितना बचा 4 0 0 13 3 का 39 कितना बचा 1 बच गया पॉइंट लावांगे कितना आएगा 0 समथिंग है ना। आप इन्ना ही चेक कर लेने पहला 23 वाला कोई आंसर है कि नहीं गा। आ देखो ऑप्शन नंबर डी सैकेंड इतने भी देखो पहला 10 आ गया 0 तो जाना हीगा फिर तो 0 आना हीगा फिर बाद चो 13 7 का 91 है ना 91 तो जाना हीगा 7 ते सो सीधे ही पता लग गया ऑप्शन की साढ़े ऑप्शन नंबर सैकेंड की गा आंसर है। ਹੁਣ चलते अपने अगले सवाल ते क्वेश्चन नंबर 52 राम sells almonds at cost price but uses false weight and thus gain 18% profit। how many grams of almonds does he give for 1770 grams of almonds। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਬਦਾਮ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ पर झूठे वजन की वरतों करता है ਅਤੇ इस तरह 18% मुनाफा कमाता है। वह 1770 ग्राम बदाम ਲਈ किन्ने ग्राम बदाम दिंदा है। सब तो पहले देखो अगर आप पिछले सम किते उन्होंने की होंदा सीगा अगर 18% का प्रॉफिट हो रहा मतलब आप 100 की चीज़ किच बेच रहे 118 च बेच रहे पर इस की है
चीज़ नूं वधा के नहीं बेच रहा, वो समान ही कट लै रहा विचों। सो देखो बेस नाल आपां करदे बेसिक मैथड नाल 18% का प्रॉफिट मतलब 100 की चीज़ 118 च, पर इत्थे की हो रहा वो समान घट दे रहा, मतलब जो 118 की प्रॉपर दिंदा ते किन्नी दिंदा 1770 ग्राम दिंदा ना, पर उन्हें प्रॉफिट कितने करके उन्होंने घट दी है ना 118 के हिसाब नाल किन्नी घट दी देखिए आपां एक दी वैल्यू किन्नी आ जी 1770 बटा 118 आपां असल च वैल्यू कितनी करनी है 100 की वैल्यू कितनी आएगी देखो इत्थे 1770 बटा 118 इंटू 100 हो जाएगा। हुण इस तो बाद इन्हूं कटिंग करो, पहला कितने जाएगा 3 ते नहीं जाना 2 ते कट के देखते हैं, 2 5 का 10 2 9 का 18 हो गया, फिर उत्ते देखो 2 8 का 16 फिर 1 बच गया, 2 8 का 16 फिर 1 बच गया, 2 5 का 10 आ गया ना 885, फिर लिखिया 59 59 की हुंदा एक प्राइम नंबर। सो एदा अगे किते कटिंग नहीं होएगी, ऐ सीधा डिवाइड ही होएगा। कितने जाएगा देखो पहला मैं जी मैं 5 पहला इतने कर लेने 885 है ना, डिवाइड करते हैं 59 ते, पहला कितने जाएगा 1 ते, जो 2 ते भेज दे वड्डा आइंदा 9 9 18 आकी बन गया 7 5 जो 7 के कितना बचा 2 पिछे के 5 हुण किन्ने ते जाएगा देखो ये जाएगा 9 5 ते 9 5 का 45 4 आंसर आ गया तो 5 5 का 25 तो 29 बन गया, कितने गया 5 ते, नहीं तो तुसीं करके देख लेना साइड ते 59 5 का कितना था 295 हुंदा कटिया गया कितना आया 15 15 नूं 100 ना कराओ कितना आ गया 1500 ग्राम आएगा। ये साਡਾ ऑप्शन नंबर 3। ਤੁਹਾਨੂੰ इस सम च कोई भी डाउट रह जाता तो कमेंट कर देना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ 2-4 सम करा ਦਾਂਗਾ ठीक है। ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ कुछ भी नहीं है, देखो जे बेसिकली की ਹੁੰਦਾ जे 100 ਤੇ 18 ਦਾ प्रॉफिट हो रहा मतलब 118 ਦਾ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, पर इत्थे समान घट दिता है ना, ਆਪਾਂ ਉਹ कैलकुलेट कर ਲੈਣੇ ਆ 118 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ 100 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 53 थर्ड प्रपोर्शन की हुंदा साडा A/B इक्वल टू B/C, ये C हुंदा थर्ड प्रपोर्शन ठीक है। ध्यान ना कन्फ्यूज नहीं होना, जो आप फोर्थ प्रपोर्शन करते हैं ना वो देखो आप करते आ दोवें टर्म डिफरेंट हो जाती है, कि हुंदा A/B इक्वल टू C/D, डी हुंदा फोर्थ प्रपोर्शन, जो आप करते हैं थर्ड प्रपोर्शन वो की हुंदा A/B इक्वल टू B/C, सी की हुंदा थर्ड प्रपोर्शन। ये गल तुसीं ध्यान च रख लेना ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना पेपर च। इत्थे पर करना सी की वैल्यू, सी उधर चल जाएगा उत्ते की बन जाएगा बी नूं बी ना करावांगे B² ए गाड़ा बी ए गाड़ा सी ए नहीं सॉरी ए गा बी, जिहड़ा पहला हुंदा ए दूजा हुंदा बी, ए का बी। हुण देखो बी का की करना आप ऊपर स्केयर करना 5/16 का स्केयर, थले क्या आएगा 1/8, जो थले टर्म कोई भी ऊपर जाने की उल्टी हो जाती है ठीक है। उत्ते की बन जाएगा 5 का स्केयर 25, 16 का स्केयर कितना बन जाएगा 16 का 256 हुंदा, 8 उत्ते जाके होएगा उत्ते आ जाएगा 8/1 बन जाएगा। इन्हू सोल्व कर लो 8 का इत्थे का 24 24 एक बचा 8 का 16 कितना बना 32, ये है 25/32, एक साਡਾ ऑप्शन नंबर साਡਾ पहला लगी समझ। सो प्लीज़ कन्फ्यूज नहीं होना थर्ड प्रपोर्शन ते फोर्थ प्रपोर्शन च, इत्थे मैं दोबारा लिख देना एक बारी, नहीं तुसीं पिछे लिखिया तुसीं उत्थों स्क्रीनशॉट ले लेना, ये ले लो आ वाला ठीक है। हुण चलते अपने अगले सवाल ते, क्वेश्चन नंबर 54। In a test, B got 56 marks while A got 80 marks out of 105 maximum marks. What percentage of A's marks was B's marks? ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ B ਨੂੰ 56 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ A ਨੂੰ 80 ਅੰਕ ਮਿਲੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 105 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ए ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੀ ਦੇ ਅੰਕ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ। ए ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ x, ए ਦੇ ਅੰਕ ਦਾ x% ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, b ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾ ਕੇ। ए ਕਿੰਨੇ ਕਹੇਗਾ 80 ਦੇ x% ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, b ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ 56। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। एक्स की वैल्यू 56 उधर जाके 100 की हो जाएगा, उधर जाके उत्ते मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे की आ जाएगा 80, 0 ना 0 गया 87 का 56। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 70, कितने परसेंट होएगा 70% होएगा। जो तुम नहीं पता लगता ना कई बार ऊपर कढ़ाना नीचे कढ़ाना, सो लाइन टू लाइन चलिया करो। इतने भी देख लो, इंग्लिश भी देख लो, वट परसेंट ऑफ एज मार्क्स, मतलब वट सानू नहीं पता ना कितने परसेंट है, आप वट नूं की मान लांगे एक्स मान लांगे, x% ऑफ ए इज इक्वल टू बीज मार्क्स। हुण चलते अपने अगले क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 55। इन अ क्लास देयर आर 78 बॉयज एंड 69 गर्ल्स। द फिजिक्स टीचर administered a test and found that the average score of whole class was 70. If the average score of girls was 57, then find the average score of boys। हुण पंजाबी च एक क्लास में 78 मुंडियां अते कुड़ियां हन। भौतिक विज्ञान के अध्यापक ने एक टैसट दिता अते पाया कि पूरी क्लास का औसत स्कोर 70 सी। जेकर कुड़ियां का औसत स्कोर 57 सी तां मुंडियां का औसत स्कोर पता करो। इहनूं आपां करांगे एलीगेशन वाले मैथड नाल, बहुत ईजी लगेगा, एलीगेशन नाल बड़ी जल्दी होएगा। एलीगेशन च जिहड़ी टर्म एवरेज या कोई भी डिनोमीनेटर ना उत्थे ही लगना, ध्यान है, ठीक है। सब तो पहले बॉयज किन्ने 78, जिन्नी उपर रेशो होंदी ना उन्नी ही थल्ले बनदी जे। इहनूं आपां कट सकते हैं क्योंकि थल्ले भी सेम रेशो बनेगी, है ना। देखो इत्थे की आएगा सानूं बॉयज दी एवरेज, ये सानूं पता नहीं है। इत्थे आएगी गर्ल्स दी एवरेज, किन्नी है गर्ल्स दी एवरेज 57। विचकार की आंदी जिहड़ी दोवां नूं मिला के दोवां दी एवरेज हुंदी है। पूरी क्लास दी एवरेज किन्नी ही 70। इनू इधरों माइनस करना, इनू इधरों, इत्थे वैल्यू आई नहीं। ये गल याद रखो, जो ऊपर रेशो बनेगी वही नीचे रेशो बननी चाहिए है। इन्होंने पर सोल्व कर लिए। 3 2 का 6, 3 6 का 18, 3 3 का 3 2 का 6, 3 3 का 9, कितना बन गया 26:23। हूँ मैं इनू 70 चो 57 नू माइनस करा, 17 चो 57 गए, कितना बचेगा 10 चो 7 गए 3, 6 चो 5 गए 13, 13 इतने कितना है 13। सो 13 की वैल्यू कितनी आई 26 आई, सॉरी 26 की वैल्यू कितनी आई 13 आई। सानू कि वैल्यू करनी है 23 की, इतने पता ही पता लगा कितना आएगा। एक की वैल्यू कितनी आएगी 13/26, साइड से करके लिख लेने है ना। 23 की वैल्यू कितनी आएगी 13/26 इंटू 23, 13 1 का 13, 13 2 का 26, कितना बन गया थे कट के कितना बनेगा, जो 23 नू 2 ना कटोगे कितना बनेगा 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 1 का 2.5, कितना बन गया 11.5। कितना है 11.5 आया। सो इत्थे की आएगा 11.5 आएगा। इत्थे की करांगे आपां, एक पासों की हुंदा, एक गल याद रखियो हमेशा एवरेज विचकार आंदी ना, एक टर्म की हुंदी तो एवरेज तो छोटी एक हुंदी च वड्डी हुंदी है। सो एक होएगा इधरले पासे 57 तो छोटा तो इधरले पासे की होएगा वड्डा होएगा ना। आपां की करांगे 70 च कर देंगे प्लस कर देंगे कितना 11.5, 70 11.5 प्लस कितना बन गया 81.5। ये साडा ऑप्शन नंबर साडा पहला। ये तुहानूं पता लग गया कि बॉयज़ दी एवरेज कितनी होएगी। जे तुहानूं इदां नहीं करना आंदा फिर तुसीं बेसिक ना कर लो। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। जे तुहानूं इदां नहीं करना आंदा तुसीं फिर बेसिक ना कर लो। देखो किद्दां करांगे पर बेसिक ना। कितने बच्चे ही 78 बॉयज़ ते 69 गर्ल्स। गर्ल्स उन्होंने की किया पूरी क्लास की एवरेज स्कोर कितनी 70 सी।
टोटल बच्चे कितने हो गए, पहले टोटल बच्चे देख लिए कितने हो गए, 78 प्लस 69 कितने बने, 9 ते 8 17, 7 ते 7 14, 147 बन गए। तो 147 की एवरेज कितनी सी, 70। सो 147 बच्चे की एवरेज कितनी, 70। टोटल स्कोर कितनी होगी, टोटल मार्क्स कितने हो इनके, 147 इंटू 70 करा आप, 0 का 0, 7 7 का 49, 7 4 का 28, 28 ते 4 कितना हो गया 32, 3 आ गया, 7 1 का 7, 7 ते 3 10, 10290 बन गया। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਲਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ 57 ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਰਲਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗਰਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 69, ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 57 ਸੀਗੀ। ਗਰਲਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 57 ਇੰਟੂ 69, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾ ਲਓ, 9 7 का 63, 6 आ गया, 6 7 का 42, 42 ते 6 48, 9 5 का 45, 4 कैपिटल, 6 5 का 30, 30 ते 4 34, कितना बन गया 3 8 5 13, 4 4 8 1 9 3 3 9 3 3। ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਿਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬॉयਜ਼ ਤੇ ਗਰਲਸ ਦੇ, ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 3933 माइनस करता, 10 चो 3 गए 7, आ कितना बन गया 8, 8 चो 3 गए 5, आ बन गया 12, 12 चो 9 गए कितना बना 3, आ बन गया 9, 9 चो 3 गए कितना बना 6। हुण बॉयज़ किन्ने ही गए 78, 6357 78 ना डिवाइड कर दो तो तुहाडा की आ जाएगा 81 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है 81 ही ना आंसर वही आएगा, नहीं तो साइड से करके देख लो, पहला जाएगा कि टेबल ते 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੀਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, 7 7 14 ਤੇ 1 15 ਥੱਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, 6 3 9 ਆ ਵੀ ਗਿਆ, 7 3 10 ਤੇ 12 ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ, 3 2 का 6, 3 1 का 3, 3 1 का 3, 3 9 का 27, 3 2 का 6 1 बचा, 3 6 का 18। ਹੁਣ 13 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, 13 2 का 26, 13 1 का 13, ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 8, 13 6 का 78 78, कितना बचा 3, 13 3 का 39, हुण की बचा नीचे 2 बचा, इनू काट लो, 2 8 का 16, फिर क्या 3, 2 1 का 2, फिर बच गया 1 पॉइंट लाके क्या आएगा 5, आ गया 81.5। सो जिद्दां तुहानूं समझ आ उद्दां कर लेना, जे बेसिक ना करना तो इस तरह कर लेना, जे तुसीं एलीगेशन ना करना तो बहुत जल्दी होएगा, पर एलीगेशन का कंसैप्ट पहले समझ के जाना किद्दां काम करदा है, ठीक है। ये सी अज दा साडा लास्ट सवाल, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਪਲੀਜ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ।